Okay, hello, welcome back once again in basic electronics practical session. So in our last practical, we have completed the experiment number 2 of this subject, that is to test the performance of Zener diode. Now under your subject, this subject under your manual, the third experiment is given to test the performance of photodiode. So that practical we will see inshallah next time whenever we will get the time, or if I am get proper simulation, then we will go for that experiment. Today I am going for experiment number 4 of your manual. In your experiment number 4, practical number 4 of your manual, it is given build and test half wave rectifier on breadboard. So in your manual, it is given to build half wave rectifier circuit on breadboard, but unfortunately we are not in college lab. So we are going to see this also as a simulation part only. So we are going to see the performance of half wave rectifier also with the help of simulation circuit only, simulation diagram. We are going to see the behavior, we are going to see the performance of half wave rectifier also. But in actually in your manual, it is given to you to perform this on breadboard. You know the breadboard where we are mounting the components, placing the component, and we are using in our lab. So actually we have to mount the components on the breadboard and to test the working of the half wave rectifier. But this experiment also we are going to see with the help of some simulation part only. So what is given in your this manual? Some theoretical background. What is theoretical background? It is given what is rectifier. So rectifier is a circuit which convert AC into pulsating DC. This is a very important term. Most of you do not confuse to say that AC into DC. Whenever you will see the rectifier circuit, you must say the rectifiers are converting AC supply into pulsating DC, not pure DC. Pulsating means some amount of AC component is also present in the DC output. So the type of rectifier which already we have seen in our lecture, in our theory part, half wave rectifier, full wave rectifier is further divided into center type and bridge type rectifier. So which we have already covered in our lecture theory part. So this is a half wave rectifier block diagram schematic. It is showing a half wave rectifier block where you are applying the AC main supply. The AC main supply you are giving at the input of half wave rectifier circuit, and at the output of half wave rectifier circuit you are getting the rectified output, means you are getting the rectification in only one half cycle of the AC supply. In the second half of AC supply the output is 0. So that's why it is known as half wave rectifier, because it is going to give you rectification in only half cycle of the input supply. Now this is the circuit diagram also which we have already seen in our theory part, theory lecture. First initially you are having this transformer. It is a step down transformer which is going to step down your main AC supply from 230 volt to the rating of the transformer. As per the rating of transformer 9 volt, 12 volt, it is going to convert the secondary voltage with that rating. Now in the upper side you are having a PN junction diode, and in the end you are having a load resistance RL from where you are taking the output. So the working of this half wave rectifier is very much clear to you. Whenever you are applying your AC input supply, this rectifier, this diode is going to conduct only in positive half cycle of AC supply, because in that cycle only this diode will become forward bias. In the negative half cycle of the AC supply, this diode will become reverse bias. Therefore, it is not going to conduct in the negative half cycle of AC supply. Thus, you are getting the output of rectifier, half wave rectifier, as only positive half cycle, and in the negative half cycle the output is 0. So what we have to do in this experiment, we have to see the behavior, we have to see the working of this particular circuit. Actually we have to see it in the breadboard and we have to observe the waveform on CRO. But the similar type of schematic we are going to see virtually also with the help of simulation. So for that I am going to show you once again back to our virtual lab site only. So again I am back to our virtual lab site, virtual lab basic electronics lab. So these all are the list of experiments
and under this experiment today we have to perform half wave rectification. So today we are going to see under this virtual lab basic electronics lab the experiment name half wave rectification. Okay, so this is your half wave rectification lab experiment part. In initial part, you are having some theory explaining what is rectification, what is half wave rectifier, which we have already studied and understood. See, all these things we have understood. This half wave rectification, this is in detail as with respect to some degree aspect also. Now directly we are going to move toward the simulation part, half wave rectifier. Okay, so this is your simulation circuit which they have designed under this particular part of experiment. So this is your half wave rectifier, and it has also given oscilloscope where you are going to see the output waveform. First we have to apply the AC supply, that is sine wave AC supply at the input of this particular circuit, and at the output of diode what you will get, we have to see it also on the oscilloscope. So first we have to adjust the ohm value, the what is the ohm value and the load resistance you are connecting. So in your experiment, in your manual, it is given some value or not. It is not given some value. We will see it on the resources required. Yes, so resistor value it is given to use 1 kilo ohm. So we are going to use 1 kilo ohm resistor value. So with the help of this slider, we are going to adjust the 1 kilo ohm. If you keep it in 1000 ohm, it is nothing but 1 kilo ohm only. Because this resistor value is mentioned over here in ohms, so we are adjusting the slider to the position of 1000. So this 1000 is nothing but 1 kilo ohm only. Now what we have to do, first we have to apply the sine wave also, this sine wave at the input. So we are applying the sine wave at the input. Now where we are going to see this sine wave, so this is the oscilloscope, CRO. In your lab, we are using cathode ray oscilloscope where we are observing the waveform, sine wave waveform. तो ये वेवफॉर्म को हम लोग यहाँ पे CRO में ऑब्जर्व करेंगे. तो मैंने इनपुट में साइन वेव अप्लाई किया है, तो वो साइन वेव आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपरली, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड एडजस्ट करने का नॉब यहाँ पे दिया हुआ है. तो इस पर्टिकुलर नॉब से आप एडजस्ट कर सकते हो कितने वोल्टेज पे रखना है एम्पलीट्यूड को, कितनी फ्रीक्वेंसी पे रखना है. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर नॉब यू आर गोइंग टू एडजस्ट. तो हमारे पास भी ऑसिलोस्कोप पे नॉब होता है जहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं और एम्पलीट्यूड को एडजस्ट करते हैं. तो यहाँ पे वही सिमुलेशन के पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस नॉब हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं. तो इट इज अप टू यू, आप कितने वोल्टेज पे रखना चाहते हो. इफ यू वांट टू कीप इट 1 वोल्ट एम्पलीट्यूड, कीप इट 1 वोल्ट. जो भी अमाउंट की फ्रीक्वेंसी आप लोग को रखना है, कम ज़्यादा आप रख सकते हो. तो बाय प्रेसिंग दिस ऑन, तो आप ऑन करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी वेवफॉर्म को. तो जो साइन वेव हम लोग को इनपुट में देना है वो हम लोग अभी ऑब्जर्व करेंगे. ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑसिलोस्कोप पे क्लिक किया तो ये आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा है क्योंकि मैंने डायोड के ऑसिलोस्कोप पे क्लिक किया है. और अगर आप डुअल पे जाएंगे तो डुअल पे जाके आपको दोनों वेवफॉर्म मिलेगा, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म दोनों मिलेगा. अब आप यहाँ से दोनों चैनल की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. कौन से चैनल की पोजीशन को आपको चेंज करना है. 2 चैनल आ गए आपके पास, चैनल 1 चैनल 2. तो चैनल 1 में आपका इनपुट वेवफॉर्म है, चैनल 2 में आपका आउटपुट वेवफॉर्म है. तो इस तरीके से आप स्लाइडर से एडजस्ट कर सकते हो. तो मैं चैनल 1 को एडजस्ट कर रहा हूँ, तो चैनल 1 का इधर पे वेवफॉर्म एडजस्ट हो रहा है. चैनल 2 की पोजीशन को एडजस्ट कर रहा हूँ तो चैनल 2 की यहाँ पे वेवफॉर्म एडजस्ट हो रही है. तो इन दिस वे ये आपका वेवफॉर्म रिफ्लेक्ट हो रहा है. ये आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो AC सप्लाई,
और ये आपको डायोड के बाद जो रेक्टिफिकेशन होकर आउटपुट मिल रहा है वो ऑब्जर्व हो रहा है। नाउ आप यहाँ से आप इनपुट की फ्रीक्वेंसी वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर दो ये नॉब से। जो अमाउंट में आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करोगे वो हिसाब से आपका इधर पे आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस हाफ वेव रेक्टिफायर, whenever the AC supply positive half cycle is there, you are getting the single half rectification. Whenever AC supply negative half cycle is there, output is zero. तो आप इसको एग्जैक्टली आप अपनी पोजीशन पे ले जाके नॉब की पोजीशन पे ले जाके ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब जब देखो एसी सप्लाई की पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट आ रहा है, जब भी नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो आउटपुट आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल पे आउटपुट जीरो हो रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट हम लोग को अंडरस्टैंड नहीं करना था। जस्ट हम लोग को ये सर्किट बाउंड करना रहेगा और ये सर्किट को हम लोग प्रॉपरली बाउंड करेंगे, डेफिनेटली हम लोग को ये वेवफॉर्म इस तरीके से ऑब्जर्व होगी। आप इनपुट में क्या अप्लाई करेंगे, एसी मेन सप्लाई अप्लाई करेंगे। दिस इज योर इनपुट, चैनल 1 इज योर इनपुट एसी सप्लाई जो हम लोग साइन में प्रोवाइड कर रहे हैं ये सर्किट में एसी मेन सप्लाई। और ये डायोड है, डायोड के बाहर अपने पास ऑसिलोस्कोप है। तो ऑसिलोस्कोप पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा। तो दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म आई एम गेटिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये चीज़ है, अगर आपको एम्पलीट्यूड को एडजस्ट करना है, एम्पलीट्यूड बढ़ाना है तो आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाओ, इनपुट एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करो। मैक्सिमम आप 2 वोल्ट तक लेके जा सकते हो, तो मैक्सिमम 2 वोल्ट तक आपको यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्ट करने के लिए। तो दिस 2 वोल्ट मीन सिंगल पीक 2 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो उसको। और जो भी एम्पलीट्यूड का आपको एडजस्ट करना है, यू आर एबल टू एडजस्ट दिस एम्पलीट्यूड प्रॉपरली नॉब से। नॉर्मली हम लोग इसको 1 वोल्ट पे रख देते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप एडजस्ट करोगे वो हिसाब से आपको वेव फॉर्म में पार्ट मिलेगा, आपको इधर पे दिखाई देगा। सो ऑल ऑफ यू गेटिंग ऑब्जर्विंग दिस वेव फॉर्म, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। तो ये इनपुट वेव फॉर्म हम लोग रेक्टिफायर के इनपुट में दे रहे हैं और ये आउटपुट वेव फॉर्म हम लोग को रेक्टिफायर के आउटपुट में जो ऑब्जर्व हो रहा है। इन दिस वे वी आर गेटिंग। नाउ देयर आर सम कैलकुलेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इधर पे दिखाया हुआ है। वी आर एम एस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो इसका फॉर्मूला वी एम बाई टू, पीक वोल्टेज डिवाइड बाई टू। तो वी एम इज द पीक वोल्टेज, तो वी एम पीक वोल्टेज जो आप पीक वोल्टेज रख रहे हो, तो आप पीक वोल्टेज कितना रख रहे हो अभी यहाँ पे 1 वोल्ट। तो वो हिसाब से आप इधर पे एडजस्ट कर सकते हो, जो हिसाब से आप पीक वोल्टेज रखोगे वो हिसाब से आपको इधर पे आउटपुट में मिलेगा। तो वी एम इज द पीक वोल्टेज। वी डी सी, डी सी आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, वी एम बाई पाई। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, वी ए सी अपॉन वी डी सी। सिंस वी ए सी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, वी ए सी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ वी आर एम एस द होल स्क्वायर माइनस वी डी सी द होल स्क्वायर। तो वी आर एम एस आपको कहाँ से मिलेगा, वी एम बाई टू करके। वी डी सी आपको कहाँ से मिलेगा, वी एम बाई पाई करके। आप ये कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट द आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ दैट आपको यहाँ पे वी ए सी मिलेगा। यहाँ पे पीक करंट का आंसर दिया हुआ है, पीक करंट इज 0.299 मिली एम्पियर। तो ये डिपेंड करता है आपके इधर पे एडजस्ट करने के हिसाब से, जो हिसाब से आप इधर पे इनपुट आउटपुट एडजस्ट करोगे यू विल गेट द आउटपुट ऑफ दैट विंडो। ऑफ करना चाहो ऑफ कर दो ऑसिलोस्कोप को, ऑन करना चाहे ऑन कर देंगे। वेवफॉर्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू एडजस्ट करो। सबसे पहला स्टेप इसमें यही है, फर्स्ट यू हैव टू एडजस्ट द लोड रेजिस्टेंस वैल्यू। लोड रेजिस्टेंस वैल्यू एडजस्ट करना है, साइन वेव इनपुट पे अप्लाई करना है, ऑसिलोस्कोप को ऑन करना है और यहाँ पे जो ऑसिलोस्कोप है इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट हैव अप्लाइड द साइन वेव इनपुट, ये साइन वेव इनपुट है, ये ऑसिलोस्कोप का ये आउटपुट है।
डुअल पे जाएंगे, दोनों चैनल का आउटपुट मिलेगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट, क्या चीज़ थी इसके अंदर, क्या करना था हम लोग को। और फिर इसके अंदर आपको मैनुअल में क्या दिया हुआ है, क्या करने के लिए बोला गया है, व्हाट वी हैव टू डू। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में टाइप ऑफ रेक्टिफायर, तो कौन सा टाइप ऑफ रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर आउटपुट ऑन सीआरओ, तो व्हाट इज द पीक वोल्टेज जो आपको मिल रहा है वो लिखना है। VDC कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला, तो क्या फार्मूला यूज करके क्या आएगा आपका DC वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज VM/π करना है। वॉट एवर द पीक वोल्टेज यू आर गेटिंग, वो पीक वोल्टेज को नोट डाउन कर लो इधर पे। तो पीक वोल्टेज आपका आउटपुट में जो आ रहा है वो आपको इधर पे नोट डाउन करना है, व्हाट इज द पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट आप लोग इधर पे लिखेंगे, 1 वोल्ट डिवाइड बाय पाई, तो यू विल गेट DC वोल्टेज। और दूसरा पार्ट यहाँ पे मेजर करने के लिए बोला था, VDC मेजर यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। तो हम लोग अगर डिजिटल मल्टीमीटर यूज करते हैं लेबोरेटरी में ब्रेडबोर्ड में, तो एक्चुअल उसके थ्रू क्या आ रहा था वो लिखने का था, DC आउटपुट वोल्टेज मल्टीमीटर का यूज करके कितना हुआ और कैलकुलेटेड करके कितना हुआ। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन है आपका DC आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने का, VM/π। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू गेटिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा था मैं। दिस Yes. तो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विच वी हैव ऑब्जर्व यूजिंग दिस सिमुलेशन। और जो आपको उधर पे कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा उसको स्टडी करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, वहाँ पे समझ में आएगा। ओके, तो प्लीज़ स्टडी करो, उसको ध्यान दो, थोड़ा देखो ये सब कैलकुलेशन वगैरह कैसे है इधर पे, अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज़ द पीक वोल्टेज, डिवाइड बाय 2 करो, ये सब कैलकुलेशन खुद से ट्राई करो एंड अंडरस्टैंड करो। तो स्टडी करो और आप लोग ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको कंप्लीट करना अपने ओन से, क्या आपको मिल रहा है पीक वोल्टेज और डिवाइड बाय पाई करके। ये मल्टीमीटर पार्ट वाला ब्लैंक रखना, क्योंकि वो हम लोग कर नहीं पाए, मल्टीमीटर पार्ट नहीं यूज़ कर पाए, बाकी सब चीज़ आसान है, सेम। तो आई थिंक डेट्स ऑल फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट। इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल अटेंड करेंगे। वी आर गोइंग टू सी दिस हाफ वेव रेक्टिफायर also with the help of filter circuit also. So thank you very much all of you joining. Thank That's you all so much. for that's all for today's practical. Thank you very much. Allah. Allah.